Yes. Is the screen visible? Yes, sir. Okay. देखिए फिर से देखिए हमने फोरियर सीरीज में कुछ क्वेश्चंस राइज किए थे. देन वी कैन टॉक अबाउट कि हाउ वी कैन बी एक्सपैंड गिवन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ अ फोरियर सीरीज. तो फोरियर सीरीज बेसिकली being an trigonometric series. So the Fourier has converted some trigonometric series into the Fourier series out there. So what is the Fourier series? We can go with that first of all. So now I'm discussing about the Fourier series. A function. सर आपकी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है, सिर्फ मेरे में एरर है? बाकी इधर तो ठीक है भाई. नहीं सर सर, इधर दिख भी रही है, ठीक सही है. दिख रही है. ओके सर सर, ओके सर, सर उसी का एरर होगा. लिनक्स प्रॉब्लम है. Linux. Okay. So we can say that a function f of x, which is periodic and piecewise. Please mute yourself. Yashwardhan, please mute the others. Which is periodic and piecewise continuous in the interval alpha to alpha plus 2 pi can be expressed in terms of Fourier series as the f of x is being approximated as, this is a sign of approximation, you can say. In some of books it is being written as equal to b, but because it is a series, so we are just being using up a sign of approximation. A naught by 2 plus summation of a an cos of nx, where n is from 1 to infinity, plus summation bn sine of nx, where n is equal to be 1 to infinity. Okay, where n is a positive integer out here. In some of the books, this is being divided by 2, like a naught by 2 is being divided up. In some of the books, the formula will be like a trigonometric series. This 2 will not be there. ठीक है, तो वो 2 जो है वो जब हम a नॉट a n b n जब निकालते हैं तो वहां के फार्मूले में आ जाता है. टू मेकअप अ सिमेट्री इन द फार्मूलेस, तो द डिवीजन ऑफ a 2 will be there in some of the books, and some of the books the division by 2 is not there. But that doesn't matter up in that case. वो जब हम a नॉट a n b n की जब वैल्यू निकालते हैं तो in that case we can evaluate the given results. तो उसमें वो ऑलरेडी कवर हो जाता है. तो यहाँ पे ना कुछ मैं इस अब यहाँ पे जो a नॉट a n b n जो है दे आर कोफिशिएंट्स ऑफ ए फूरियर सीरीज. ठीक है, कार्ड Euler's constant. ठीक है, and now we have to be find the values of these coefficients a naught a n and b n. ठीक है, अब a naught a n और b n के जो फॉर्मूलेस हमारे पास निकल के आएंगे, that we have to be substituted in this series and that will be a required Fourier series is there. तो इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्मेशन है like this way, we have a naught by 2 plus, अब ये सीरीज है तो it's like a a1 cos 1x plus a2 cos 2x plus so on like this way, and so on, plus b1 sine 1x plus b2 sine 2x. The series is like this way. Okay, which is a combination of a sine and the cosine parts, and we have to be find the values of all these coefficients a naught a1 a2 a3 b1 b2 b3 and so on. तो उसके लिए ना जब हमने फॉर्मूलेस निकालने हैं तो उसके लिए कुछ ना बेसिक इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं. तो मैं वो रीराइट कर रहा हूँ, सम इंटीग्रेशन रिजल्ट्स. आपने इसको ड्राइव करना चाहें तो ड्राइव कर सकते हैं. तो मैं विदाउट डेरिवेशन लिख रहा हूँ.
because based upon the basic results कह लीजिए या formulas कह लीजिए, you can say it is being directly used. Suppose out if you have any integral of a cos of a mx dx, where the limit is of this integration is from alpha to alpha plus 2 pi. Now, if you do the integration of this cos of a mx from alpha, where here the m is any integer, this z represents the integer. So the integration of this part is 0. ठीक है, तो इसको आप ड्राइव करके देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे 0 है. ठीक है, तो I'm not going to be do out. Second, similarly अगर अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई है इंटीग्रल और साइन एम एक्स है, अगेन m is an integer, is also 0, तो ये भी 0 ही होता है. ठीक है. एक्सक्यूज मी सर, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, बट कुछ हाँ. बच्चे वेटिंग रूम में अभी हैं. Yashvardhan, please allow all the students. Sir, I have allowed. Sir, could you scroll up a bit? Is enough? Yes, sir. Similarly, you can go with the formulas like अगर आपके पास इंटीग्रल अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई है cos of a mx into the sin of a nx है dx. ठीक है, अब इसको आप ड्राइव करके देख सकते हैं. ठीक है, it's also be 0 where m and n is any integer. ठीक है, you can use up the formula of a 2 cos a sin b whatever and break it out. Similarly, you can have if the integral is like alpha to alpha plus 2 pi cos of a mx into cos of a nx is there. ठीक है, this formula can be broken up if m is equal to bn or if m is not equal to bn out there. ठीक है, if m is not equal to bn, in this case you can check it out, this formula becomes equal to be 0, and if m is equal to bn, in that case we can have a formula is a pi. You can simply drive it out yourself because of the basic integration formula techniques is being used. Similarly, alpha to alpha plus 2 pi, we have a sine of a mx into sine of a nx dx. Again, if you see out the basic formula for this one, again the two results are there. We have a m is not equal to bn, and if we have a m is equal to bn, in that case again we have the same case out there, 0 or pi. Similarly, some of the values that we have to be used up again and again, like say that sine of a n pi, you know that is Can you 0. scroll up? Yeah. ठीक है, थोड़ा सा और सर. it's enough. Yeah. Sine of n pi is 0. Cos of n pi की बात की जाए तो this is equal to be a -1 raised to power n, because if we have a cos 0 is 1, cos pi is a -1, cos 2 pi is again +1, cos 3 pi is again -1. So it being alternating between -1 and 1, depend upon the value of n. Similarly, the cos of 2n plus 1 into the pi by 2, it's also a 0 out there, and so on. And similarly, one more formula that we have already done in the Laplace transformation, जब हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें इंटीग्रेशन यूज हो रहा था, तो जनरलाइज इंटीग्रल फार्मूला मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ क्योंकि काफी बार ये भी यूज होगा. तो जनरलाइज्ड इंटीग्रल फार्मूला, इसमें हमने क्या डिस्कशन किया था कि इंटीग्रल ऑफ u इनटू v. ठीक है, अगर दो पार्ट्स हैं आइलेट, अब देखो आप आइलेट से भी लगा सकते हो, पर कई बार क्या होता है आइलेट बिकम्स क्वाइट लेंथियर, है ना. तो इन दैट केस हमने आपको डिस्कशन किया था जनरलाइज इंटीग्रल फार्मूला जो है, फर्स्ट फंक्शन as it is integral of a second minus differentiation of a first into the integral of the v1 plus u double dash v3, where v3 is the integral of a v2. Please mute yourself. Yes, ma'am. Minus of a u triple dash v4
where v4 is the integral of a v3, and that process will be going on till you get up the integral is there. ठीक है, तो ये basics कुछ हैं जो हमारे बार बार यूज आउट होंगे to get the result of a Fourier series. ठीक है, तो now I'm come to the basic, again come to the Fourier series. तो मैं वापस Fourier series पे आता हूँ. अब Fourier series में हमने लिखा कि कोई भी सीरीज हमारे पास अगर फंक्शन जो है f of x जो है वो पीरियोडिक है in the interval alpha to alpha plus 2 pi, piecewise continuous है, ये फंक्शन पीरियोडिक है, तो we can write up the series as like a naught by 2 plus summation of an cos of nx plus summation of bn sin of nx की फॉर्म लिख सकते हैं, sin of nx, where n is equal to be 1 to infinity. Okay, so now here we will try to find the value of these coefficients a naught, an and bn. ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं coefficients a naught, an and bn. A naught, an, bn का मतलब है, an means we can have to be find the values of a1, a2, a3, a4, a5 and so on. bn का मतलब है we can try to find out the values of b1, b2, b3 and so on. ठीक है, all those values. So why we have to be find the value in general. So we will start with the value to be how to be find the value for the a naught first. तो पहले a naught की value जो है वो निकालते हैं. तो how we can find the value for the a naught. तो a naught की value को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये suppose I will mark up this equation as a number 1, क्योंकि I will just use up this equation again and again. तो should I scroll down a little bit? Yeah. अब a naught की value को निकालने के लिए we will try to be integrate. ठीक है, integrate equation number 1 within the limits. Yeah, within the interval you can say alpha to alpha plus 2 pi. So we will integrate the left hand side, which is f of x dx, from alpha to alpha plus 2 pi. Okay, and we will do the integration of the right hand side part also is there, which is equal to be the sorry, here I used the plus sign. So this is equal to be a naught by 2 dx integral from alpha to alpha plus 2 pi. Now if you do the integration of a cos of nx from alpha to alpha plus 2 pi, because an are the constants, a naught, an and the bn's are the constants, and we have to be find those values basically. So whenever when you do the integration, the a1, a2, a3, a4 or b1, b2, b3, b4 will come out of integration, and we will go with the integration of a cos of a nx and cosine of a nx from alpha to alpha plus 2 pi, and we have already discussed of that in the book, that the integral of a cos of a nx for alpha, for integral between alpha to alpha plus 2 pi is equal to be 0. So means the other two parts become 0 if you do the integration by using up some basic results that we have already discussed. So now if you see out the integration, the a naught is a constant comes out of a integration. देखो यहाँ पे मैंने अगर a naught जो है अगर नहीं a naught by 2 नहीं लिखते ना, तो फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है बस a naught की वैल्यू का, अदरवाइज सीरीज में फर्क नहीं पड़ता है. तो here we get the x alpha to alpha plus 2 pi, and if you apply it up here in this case we get the a naught by 2 into the 2 pi, and 2 will be cancelled up here, and we get the formula for the a naught. तो हमारे पास a naught का फार्मूला निकल आया. अब ये फार्मूलेस याद रखने हैं हमने, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए हम ये बार बार डेरिवेशंस नहीं करेंगे. दिस इज अ डेरिवेशन एंड इट विल नॉट बी आस्क्ड इन द पेपर. ठीक है, बट यू शुड नो हाउ द फार्मूला इज बीइंग ड्राइव्ड अप. दिस इज 1 by pi, integral is from alpha to alpha plus 2 pi f of x dx. So we get the formula of a naught. So using up this formula we will substitute the value of a naught in the given series number 1. ठीक है, तो हमने a naught की वैल्यू ऐसे निकालनी है, सीधा फार्मूला अप्लाई कर देंगे. ठीक है, वो अभी न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे कैसे we can be find up the values. So now further अब an की वैल्यू निकालनी है. We can try to be find out the value for an.
अब an की वैल्यू निकालने के लिए व्हाट वी डू, अब हम पहले क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे cos mx के साथ और इंटीग्रेट कर देंगे विद इन द इंटरवल, जो भी लिमिट हमारे पास है। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विद cos mx and integrate within the limits alpha to alpha. Sir, could you please scroll up a bit? Yeah. It's a little bit more. काफी है। Sir, it's ठीक है, कुछ मिस हो जाता है तो you can be see up the PDF file in that case. I'm uploading the PDF in the given link. Thank you, sir. Is it okay? Yes, sir. Done. Should I scroll down? Thank you. Thank you. तुमने बोला कि मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन नंबर 1 विद द cos of mx and then integrate, है ना? तो we can we go with the case again, cos mx लिख लीजिए, cos nx लिख लीजिए, formula will be because m becomes a integer out there here again. तो मैं n ही लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो just to be make for the convenience, okay? अब हम क्या करते हैं? अगर मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो here we get the formation is like alpha to alpha plus 2 pi, ठीक है, f of x into the cos of nx into dx, ठीक है, is equal to be integral alpha to alpha plus 2 pi a naught by 2 cos of nx into dx plus, अब ये जो हमारे पास टर्म्स बचती हैं दूसरी वाली सी आउट, उसके बाद सीरीज थी हमारे पास, सीरीज an into the cos of nx, है ना? अब उसमें n वेरी कर रहा है, अब मैंने मल्टीप्लाई किया है, we are being multiplied with the, वहां cos m, वहां सीरीज में m ले लीजिए, m1 to infinity over there, या यहाँ पे whatever the term to be taken, तो क्योंकि फार्मूला मुझे बनाना था तो मैं थोड़ा सा चेंज आउट कर दिया। तो अगर आप सीरीज में देख रहे हैं तो वहां पे अगर तो m is not equal to be n आ रहा है, तो मींस पहली टर्म अगर आप a1 ले रहे हैं तो a1 into cos nx आ रहा है, तो इंटीग्रल ऑफ a1 into the इंटीग्रल ऑफ cos of 1x into cos of nx क्या हो जाएगा, फ्रॉम अल्फा टू अल्फा प्लस 2 pi is 0, एंड cos of 2x into the cos of nx अल्फा टू अल्फा प्लस 2 pi वो भी 0। तो ये इक्वल कब आएगा, जब हमारे पास n पर्टिकुलर केस आएगा, जब m is equal to be n आएगा, तो इन दैट केस यू विल फाउंड अप दैट, अगर मैं ये फॉर्मेशन थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो प्लस a1 into integral of a cos of ax into cos of nx आ जाएगा, n is equal to be 1 to 1 कर दिया मैंने, अल्फा टू अल्फा प्लस 2 pi, सॉरी अल्फा टू अल्फा प्लस 2 pi। Similarly, second plus a2 integral alpha to alpha plus 2 pi cos 2x into the cos of nx dx, and so on. We have only the case will be there, we have a n alpha to alpha plus 2 pi, and we have a cos of a nx into cos of a nx, है ना? ऐसा केस बनेगा, प्लस so on, ऐसे आगे केस बनता जाएगा, प्लस अगला केस बनेगा bn के लिए, अगर bn वाला केस मैं देख रहा हूं तो वो ऐसे ही बन जाएगा, प्लस मैं उसको सीधा लिख लेता हूं, समेशन ऑफ bn इंटीग्रल ऑफ अल्फा टू अल्फा प्लस 2 pi साइन ऑफ nx ले लीजिए इनटू साइन ऑफ cos ऑफ mx है, ये ऐसे m ले लीजिए इनटू साइन cos ऑफ nx है, ठीक है, बिकॉज़ दे आर डिफरेंट, ठीक है। तो हियर
अगर अब मैं यहाँ पे चेंजेस देख रहा हूँ तो मेरे पास ये पार्ट 0 हो जाएगा इंटीग्रल में, ये पार्ट 0 हो जाएगा इंटीग्रल में, ये पार्ट 0 हो जाएगा इंटीग्रल में, एंड दिस पार्ट भी हमने ऊपर डिस्कशन किया, दिस पार्ट की इंटीग्रल हो जाएगी पाई, और ये पार्ट भी 0 हो जाएगा। तो इफ यू कैन सी आउट, हाँ जी बेटा, इसमें सर हाँ हाँ, सर हम जब n की वैल्यू पुट करेंगे तो वो सब में पुट नहीं होनी चाहिए, सभी क्योंकि में हमने पुट कर सेम रहे हैं, सभी में पुट कर रहे हैं। तो सर वो उधर cos nx भी फिर cos x plus cos 2x ऐसे नहीं होना वो चाहिए? वो तभी मैंने बोला वो हमने फिक्स मल्टीप्लाई किया है, cos nx या cos mx जो भी हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ ए कन्वीनियंस मैंने उसे nx ले लिया ताकि थ्रू आउट फार्मूला सेम रहे, ठीक है। ओके सर। आप उसे mx ले लीजिए, आप उसे mx ले लीजिए, वो फिक्स है। फिर इधर फिर mth मतलब mth टर्म इक्वल रहेगी फिर, ठीक है हाँ, सर, गॉट इट। जहाँ पे mx कम होगी वो इक्वल हो जाएगी। वो am का So, फॉर्मूला रहेगा, हाँ वो एक ही चीज है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो इन दैट केस हमारे पास बाकी सब टर्म 0 हो गई, तो यहाँ से an का वैल्यू जो है वो निकल के सामने आ गई। सो an बिकम्स इक्वल टू बी, अब इसकी वैल्यू पाई है तो फार्मूला निकल के सामने आया 1 बाय पाई इंटीग्रल अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई f of x into the cos of nx dx। तो वी गेट द फार्मूला, तो हमारे पास फार्मूला निकल के सामने आ गया an का। तो डायरेक्टली यूज करेंगे यही फार्मूला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब सिमिलरली यू कैन फाइंड द वैल्यू फॉर bn। अब bn के लिए हम क्या करेंगे, तो यहीं से a1 a2 a3 a4 सब वैल्यूज निकल आएंगी इसी फार्मूले से। तो बेसिकली दिस इज जनरल फार्मूला। अब मेरे bn निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विद sin nx, तो sin nx से मल्टीप्लाई करवा लीजिए और फिर इंटीग्रेट कर दीजिए विद इन द लिमिट्स। जो भी लिमिट्स आपके पास है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर रहा हूं तो आई विल गेट द फार्मूला फॉर, मैं डायरेक्टली फार्मूला लिख रहा हूं, ठीक है। ऑन द सेम पैटर्न यू विल गेट द फार्मूला फॉर द bn यूजिंग द बेसिक रिजल्ट्स। तो bn का वैल्यू आ जाएगी 1 बाय पाई, सर ये साइन mx नहीं होगा? है जी बेटा, हाँ अरे मैंने फिक्स कर रखा है, आप m और n जो भी हैं दे आर द इंटीजर्स, ठीक है। तो यू कैन बी गो विद द एनी ऑफ द n आउट देयर, nx लेना तो nx ले लीजिए, फिक्स कर लीजिए बस से। अब बेसिकली आई हैव टू बी यूज अप द बेसिक फार्मूलेज की मैं इसे रिलेट कर रहा था कि यहाँ भी n है, इस कारण से मैं यहाँ पे भी n ले लेता हूँ। आप नहीं तो वहां पे m लोगे तो यहाँ पे bm आ जाएगा, बस कोई फर्क नहीं सर पड़ेगा। सर वो आपने ऊपर जब बी ए एन निकाल रहे थे तो सिग्मा बी एन साइन mx लिखा है ना? एक मिनट, हाँ वो मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है कि वहां पे डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंट रहेगा ना, क्योंकि इन दैट केस हियर इज आल्सो m आउट देयर, ठीक है। वो दिखाने के लिए मैंने लिखा है वेयर m इज इक्वल टू बी 1 टू इंफिनिटी, ओके सर। ठीक है, वेयर m इज इक्वल टू बी 1 टू इंफिनिटी। अगर आप m से करेंगे तो इन दैट केस bm निकलेगा। तो मैं अभी क्योंकि an bn की वैल्यू जनरल की आप am bm भी निकाल सकते हैं, वो भी बेसिक तो फार्मूला जनरल ही है ना, इट डजंट मैटर ओके सर। तो दिस इज 1 बाय पाई इंटीग्रल अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई f of x into the sine of nx dx। so this formula is being formed up। तो ये हमारे पास फार्मूला जो है निकल के सामने आ गया। अब ये वाली फार्मूलाज की जो वैल्यूज आएंगी, that should be substituted in a given series and that will tell us about the Fourier series। तो वो हमारे पास Fourier series निकल के सामने आएगी, ठीक है, that is a Fourier series। so this is the way we can evaluate any function which is a priori लास्ट चीज नहीं समझ में, तो इसका वैल्यू जो निकलेगा तो हम कहाँ डालेंगे इसको? सीरीज के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ओके जो ओके इक्वेशन नंबर 1 लिख रहे हैं ना सीरीज की, ये वाली f of x is equal to be यस सर a naught by 2 plus summation of a an cos of a nx plus summation of a bn sin x, इसके अंदर डालेंगे, and that is actually Fourier series, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर केसेस डिस्कशन करते हैं इस सीरीज के अंदर ही, which will help us to be get to save our times, ठीक है। हमारा टाइम कुछ बच जाता है कि अगर हम कुछ वैल्यू का, अदरवाइज इट्स वेरी लेंथी प्रोसेस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a naught an and bn, है ना। अच्छा, पर्टिकुलर केस क्या कहता है,
if I consider alpha is equal to be minus pi in this in limits, जो हम ऊपर लिमिट ले रहे हैं ना अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई, अगर मैं उसमें अल्फा को माइनस पाई ले लूं तो मेरी लिमिट क्या बन जाएगी? लिमिट बन जाएगी माइनस पाई टू प्लस पाई, है ना, ये लिमिट बन जाएगी। अब इस लिमिट के अंदर जब भी आपके पास लिमिट आ जाए माइनस पाई टू पाई, या जनरल की बात कर लेते हैं माइनस एल टू एल, ठीक है, in that case we have to be check it out whether our function f of x is an even function or odd function, ठीक है। so what is an even function? It means that whenever we change the value of x to minus x, the function remains same, that is an even function. And whenever we change the value of x to minus x, it becomes a minus of f of x, that function is said to be an odd function. In such a cases, the process of the integral will be a little bit save over time. अब वो देखिए कैसे है, मैं अब दोबारा से a नोट a n और b n की वैल्यूज जो है वो लिख रहा हूँ whenever we have an interval of a type of a minus a to a और minus l to l type out, ठीक है। तो देखिए I will first of all discuss three cases out here. तो we have a नोट की वैल्यू हो जाएगी जब अल्फा की वैल्यू माइनस पाई है, तो we have a 1 by pi इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई f of x dx, है ना, ठीक, तो ये हो गया। एंड देन वी हैव an, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे डिस्कशन कर सकूं। तो an इज इक्वल टू बी हमारे पास आ गया 1 by pi इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई f of x into cosine of nx, ये आया था फॉर्मूला। सर हाँ जी बेटा प्लीज, थोड़ा सा मिस हो गया, बस थोड़ा सा ऊपर कर देना। प्लीज वेट करो। ठीक है, यस सर, ओके। should I scroll down? यस सर। तो तीसरा एक हमारे छोटा पास सा डाउट है सर, तो इवन और मतलब हमें पता चल गया कौन सा फंक्शन इवन है कौन सा, और उसके बाद करना क्या है? हाँ वही बता रहा हूँ अभी डिस्कशन करने के बाद, ठीक है। हम क्योंकि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या किसी भी फंक्शन को हम फूरियर सीरीज यानी कि साइन और कोसाइन सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो हाउ इट विल बी रिप्रेजेंटिंग, अब तो कैसा वो रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो अगर वो फंक्शन जैसे फंक्शन एफ ऑफ, अगर मैं इसकी एग्जांपल लूं इवन फंक्शंस की, मेरे पास एग्जांपल्स हैं लाइक एक्स स्क्वायर, cos of ax, है ना, x की पावर 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली ऑड फंक्शंस की मैं एग्जांपल लूं लाइक x sin x एंड सो ऑन, लाइक दैट वी हैव सम ऑड फंक्शंस आर देयर, ठीक है। तो वैसे तो अगर मेरे पास सिर्फ कोसाइन फंक्शन है, cos of ax है और साइन फंक्शन है, तो उस केस में तो सीरीज बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कोसाइन सीरीज जो है वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, साइन सीरीज भी इंक्लूडेड है। मतलब अगर मेरे पास ये साइन क्यूब आ जाता है, अब मुझे क्या करना है, इसको अगर मुझे फूरियर सीरीज में लिखना है तो क्या लिखना है, साइन क्यूब का फॉर्मूला लगा लीजिए, है ना, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला लगा लीजिए, दैट इज अ साइन सीरीज, दैट इज अगेन अ फॉर्मेशन ऑफ फूरियर सीरीज, वो फूरियर सीरीज बन जाती है। तो यानी वो अभी हम डिस्कशन करेंगे इस चीज के ऊपर। तो bn की वैल्यू जो है वो 1 by pi इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई f of x into sin nx है। थोड़ा सा इवन ऑड फंक्शन से क्या होता है कि हमारा थोड़ा टाइम बच जाता है एवैल्यूएशन करने का। वो कैसे टाइम बचेगा वो अभी डिस्कशन करते हैं, पर सभी फंक्शंस के लिए नहीं होगा ये। तो जिसमें भी इंटरवल माइनस पाई टू पाई है उसी फंक्शंस के ऊपर, उसमें भी फंक्शंस अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल वाला आ गया तो एक्सपोनेंशियल वाले के केस में तो फिर नहीं डिस्कशन कर सकते ऑड है कि इवन है, because e power x again we can't talk about odd or even. तो यानी हो, तो अगर मैं a नोट की वैल्यू ये है, तो अब देखिए अगर मेरे पास फंक्शन ऑड है, ठीक है, एंड यू नो द फार्मूला इंटीग्रल माइनस a टू a इफ f of x इज ऑड, अगर ये ऑड फंक्शन है तो क्या वैल्यू होती है, 0 होती है। यस सर, 0 होती है। और अगर माइनस a टू a f of x, अगर f of x एक इवन फंक्शन है तो इसके So, बाद तो 2 टाइम्स times 0 टू a 0 to a f of x आ जाता है। fx dx। इसका मतलब अगर f of x ओड फंक्शन है तो आपका a नोट क्या हो गया, 0 हो गया। और
अगर एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है, हाँ, तो ए नॉट की वैल्यू हो गई 2/पाई 0 to पाई एफ ऑफ एक्स dx। तो जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। अभी मैं सीरीज की भी ऊपर आता हूँ वापस। अच्छा, इसी तरह से मैं अगर an की अगर बात करूं तो an के अंदर अगर मेरे पास वही दो केस ले लेता हूं, एफ ऑफ एक्स अगर ओड है, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स मेरा ओड है तो कोसाइन फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन होता है ना? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो ओड मल्टीप्लाई बाय इवन फंक्शन कौन सा फंक्शन Odd. बनेगा? ओड बनेगा, Odd. Odd होता है ना? तो इन दैट केस अगेन an इज 0, तो an की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी। और इन द केस एफ ऑफ एक्स इज एन इवन, even into even is again an even function. In that case, the value of an becomes equal to be 2/pi 0 to pi f of x cosine of anx dx। ये बन जाएगा। Any doubt? Similarly, in the case of a bn, अगर f of x मेरा odd function है, अगर मेरा f of x odd function है, अभी ये odd है, sin x एक odd function है, तो odd into odd क्या होता है? इवन Even. function। जीरो हो जाएगा। odd into odd, it Even. becomes a even function। अब इसे ना odd को ले लीजिए -1, ठीक है। -1 into -1 is a +1, -1 into +1 is a -1, so accordingly it can be compared up। तो ये इवन फंक्शन बन जाएगा। तो इवन फंक्शन में bn की वैल्यू निकल आएगी 2/pi इंटीग्रल ऑफ 0 to pi f of x sin of nx dx। और अगर f of x इवन है तो bn क्या हो जाएगा? अब f of x इवन है, sin nx odd है, तो इवन into odd is odd, तो it again Odd. becomes 0। तो Zero. यानी कि अब आप ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास f of x odd फंक्शन है तो मेरे पास जो सीरीज है वो क्या बनी? अगर मेरे पास f of x odd फंक्शन है तो मेरे पास सीरीज बनी साइन सीरीज। आपके a नोड भी 0 आया और an भी 0 आया है। चेक इट आउट इन द इंटरवल -pi to pi। अगर मैं -pi to pi इंटरवल की बात कर रहा हूं तो सीरीज में मेरे पास सिर्फ ये सीरीज बची है। तो यानी कि मेरा टाइम बच गया, यस सर। a नोट भी नहीं निकालना पड़ा और a n भी नहीं निकालना पड़ा। और इसी तरह से अगर मेरे पास फंक्शन जो है इवन फंक्शन आ रहा है तो आप देख रहे हैं तो मेरे पास bn जो है वो 0 आ रहा है। In that case, I have to be only evaluate the a naught and the an, and the series is like this one, which is a cosine series। तो ये cosine series आ रही है। तो अगर आप सिमेट्री की भी बात करें तो आपकी सिमेट्री भी ऐसे ही बनती है। सर वो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है सर, हाँ, थोड़ा please, ऊपर कर I will सकते हैं, वो scroll बाहर down। है। No problem। Is it okay? थैंक यू सर। Yeah। So in that case, we found that if we have a odd function, we have a Fourier sine series। If we have a even function, we have a Fourier cosine series। तो हमारे पास वो पार्ट्स कुछ बच जाते हैं कि हमें वो निकालने की जरूरत नहीं है। We can be directly write the solution in that case। ठीक है, तो एक एग्जांपल डिस्कशन करते हैं। I will try to be find because in the other parts we can। Should I scroll down a little bit more? यस सर। So now question here is, Sir, can you scroll up a bit? yeah, is it okay? Yes, sir. Should I scroll down? Yes, sir. Yeah, okay। Okay, the question is Sir, you have to scroll up. again। अरे यार क्वेश्चन लेने का टाइम लगेगा, चलो काफी है। Yes, sir. Okay, the question is find the
Fourier series of periodic function f of x is equal to be x square in the interval minus pi to pi, having a period of f of x. पर अगर आप जनरल बात करें तो f of x is equal to be x square. How it is a periodic? It's not a periodic in that case, but it has to be. Whenever we will talk about, अब देखिए, अब इसको मैं थोड़ा सा डिस्कशन करने की फॉर्म में इसका डायग्रामेटिकली डिस्कशन कर रहा हूँ. It is being given to us that is being periodic. अब वो कैसे periodic है? See out the graph. अगर मैं इसका ग्राफ देखूं पैराबोला का f of x is equal to be x square का, तो its graph will be look like this one. From minus pi to pi, we have a upper parabola is there, है ना? It's like this one. The graph ऐसे निकलेगा, है ना? But now when this is the period, but now when I will check it out again in the next intervals, अब अगर check देखो वो कैसे निकलेगा, जब मैं इसे फूरियर सीरीज की फॉर्म में साइन और कोसाइन की फॉर्म में बनाऊंगा, तो then I will check it out. Its graph is like having a formation of a periodic function, and its graph will be repeated up like on the same time whatever the original graph is there. तो इसी तरह से ग्राफ जो है वो आगे फॉर्मेशन में चलेगा. It's being a periodic in that sense. Actually, it's not a periodic, but it's periodic in the form of a whenever it is being written in the form of a sine or cosine part out there. Okay, so we have to be considered in those senses. So in that case, how the solution will be started up? कि हमारे पास जो Fourier series है इसकी, it is equal to be approximated as a naught by 2 plus summation of a an cos of a nx plus summation of a bn sin x. So, हाँ जी बेटा प्लीज. so ये पॉइंट मेरे को सही से समझ नहीं आया पीरियोडिसिटी. फिर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर मैं सिंपल फंक्शन f of x को x स्क्वायर लूं, तो x स्क्वायर इज नॉट ए पीरियोडिक ना. यस सर. हाँ, तो अगर मैं x स्क्वायर को पर्टिकुलर उसकी किसी भी अलग डोमेन में बात करूं, अभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पास दे रखा है इन अ पर्टिकुलर इंटरवल, एंड नाउ इन अ पर्टिकुलर इंटरवल इट इज आल्सो बीइंग गिवन टू यू दैट इट्स पीरियड इज 2 pi, कि आफ्टर दैट इट्स वैल्यूज बीइंग रिपीटेड आउट. If you can check it out, its values being repeated out. अब वो कैसे, अब वो अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे डालेंगे ना pi square या 2 pi, तो you found that is different. But when you substituted the value in a given series of the x square, you found that its graph is having a periodic function. ठीक है? So why is the f of x being approximated ना? अब फिर हम आगे एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे कि हाउ ए सीरीज बीइंग कन्वर्जिंग टू अ गिवन फंक्शन, कि वो सीरीज कैसे कन्वर्जेंट होगी, वो नेक्स्ट पार्ट है. इसके अगला पार्ट वो डिस्कशन बाद में करेंगे. अब हमने ये डिस्कशन की है कि दिस x square is being written in the form of a sine and sine part. So why it's being periodic? Actually, it is not a periodic, but whenever we see the series of this function, ठीक है, in terms of a cosine and sine parts, we will check it out. In that part, it is being periodic out. Okay? अब देखते हैं, अभी चेक आउट करते हैं. We will see out कि इसकी सीरीज बनती क्या है, कि सीरीज है क्या, क्योंकि अगर सीरीज है, अभी अगर इससे अंदाजा लगाया जा सके, what type of a series is this one? What type of a series? This is the only lying in the upper region out there. We have the formation is like only in the four, starting from the part out there. What type of a series is this one? अच्छा चलो, anyhow, अगर आप इस फंक्शन को देखें, अगर क्योंकि मेरे पास इंटरवल दिया हुआ माइनस पाई टू पाई टाई, अगर आप फंक्शन को देखें तो फंक्शन कौन सा है, इवन है कि ओड है? ये इवन है. इवन फंक्शन Even function है. इवन फंक्शन है, बिकॉज़ f of x is equal to be x square is an even function, है ना. अब अगर ये इवन फंक्शन है, अभी हमने ऊपर डिस्कशन कर लिया है कि हमारी पास अगर फंक्शन इवन हो तो bn 0 होता है ना. bn 0 होता है, तो मैं इट मींस दैट दिस x square is being approximated as a naught by 2 plus summation of an into the cosine of nx.
इसका मतलब मुझे सिर्फ a नॉट निकालना है और an निकालना है। और ये जो आप ऊपर डायग्राम भी देख रहे हो ना, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ए कोसाइन सीरीज। ये कोसाइन सीरीज की फॉर्मेशन आ रही है एक तरह से, ठीक है। अब चेक देखिए कैसे आ रही है। अब ये कैसे कोसाइन सीरीज में फॉर्मेशन, ये जो a नॉट और a बेसिकली अब हमने देखना है कि a नॉट क्या है और an क्या है। तो सबसे पहले a नॉट निकालते हैं। अब फार्मूला सब जो हमने ऊपर डिस्कशन किया, मैं डायरेक्टली वही फार्मूला डाल रहा हूँ। तो अगर ये मेरे पास इवन फंक्शन है तो a नॉट की वैल्यू क्या है 2/पाई, लिमिट्स क्या है 0 to पाई, f of x क्या है x square dx। तो do the integration which is 2/पाई x cube by 3 0 to pi, we get this is equal to be 2/3 into pi square आ जाएगा after applying the limits। तो ये हमारे पास a नॉट की वैल्यू निकल आई, ठीक है। now I have to be find the value of an, तो फटाफट करते हैं, we have less time now। So now we'll discuss the value of an and then we will discuss the Fourier series of the given function x square। अब an की वैल्यू क्या होगी, what is the formula 2/पाई 0 to pi f of x into the sine of an, f of x into the cosine of nx, f of x हमारा x square है into cosine of nx dx। अब मैं यहाँ पे आइलेट जनरल वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, this is equal to be 2/पाई फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो सेकंड ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मींस cos nx की इंटीग्रेशन sin nx over the n। तो जनरलाइज इंटीग्रल फॉर्मूला ये फिर से देख लीजिए। और फिर x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x और sin nx अपॉन n की इंटीग्रेशन क्या होगी माइनस कोसाइन nx अपॉन द n स्क्वायर, फिर प्लस differentiation of a 2x is 2 and then again the integration of a minus cosine nx upon the n square is becomes a minus sine nx upon the n cube and limits are 0 to pi। इसके बाद दोबारा से 2 की डिफरेंशिएशन करनी है तो 0 हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है, है ना। अप्लाई द लिमिट्स नाउ। अब मैं अगर लिमिट लगाता हूं तो sin nx में अगर मैं sin n पाई लगा रहा हूं या sin 0 लगा रहा हूं तो बोथ द पार्ट्स आर 0, तो ये हो गया 0 minus 0। Similarly in the second part this becomes a 2 pi into the cos of a n pi upon the n square, है ना। और 0 लगाता हूं तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 हो जाएगा ये। Similarly in the other part again it becomes a 0 minus 0, ठीक है। तो cos n pi की वैल्यू हमने डिस्कशन की है, cos n pi is -1 पावर n, है ना। तो ये आंसर आ गया हमारे पास, पाई से पाई कैंसिल हो गया, we get 4 upon the n square into -1 पावर द n। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, an की वैल्यू आ गई। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ an and the a नॉट इन द गिवन सीरीज। तो हम इसे गिवन सीरीज में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, अप्रोक्सीमेटेड एज a नॉट की वैल्यू डाल दी a नॉट by 2 which is the pi square by 3 plus summation of an is the 4 into -1 power the n upon the n square into cos of nx, और bn की वैल्यू 0 है आपके पास, है ना। तो now if you go up the series and this series is n is equal to be 1 to infinity, तो x square is being approximated as a pi square by 3 plus 4 कॉमन ले लेते हैं minus cos x upon 1 का स्क्वायर plus cos 2x upon 2 का स्क्वायर minus cos 3x upon 3 का square and so on. The process is like that. So this is the Fourier series. So this x square is being approximated as a pi square by 3 plus 4 times this cosine series. Okay. So this is the way we can write the function x square as a Fourier cosine series. Okay. Any doubt? Any doubt? Any query? No, sir. So I think it's enough for today. So in the next lecture, we will be exploring some more parts of a Fourier series. So thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.
Yo, sir. Thank you, Any sir. query, if you have, you can ask me up any query. Okay, thank you. Thank you, sir.